Good evening, students. So in the coordination compound, today we will study about the optical isomerism. It is very important topic, and in the last lecture we have studied about the geometrical isomerism. First of all, I want to tell the definition of the optical isomerism. Optical isomerism. As you have studied in class 11th also, the compound which have similar molecular formula but different structural formula in such a way that they can rotate a plane polarized light in different direction. That's mean when the light passes through the solution of these compounds, the light will rotate either in clockwise direction or in anti-clockwise direction. So on the basis of this, they may show two or more structures. It's mean the optical isomers are of generally two types. One which can rotate plane polarized light into clockwise direction, while other is in anti-clockwise direction. That's mean that according to the definition, once again I am explaining the definition. Two compounds having same molecular formula but different structural formula in such a way that they rotate plane polarized light in different direction are called optical isomers, and this phenomena is called optical isomerism. So dear student, as we have studied about the coordination number 4 complexes as well as coordination number 6 complexes. Coordination number 4 complexes and coordination number 6 complexes. Coordination number 4 complexes are called tetrahedral complexes or square planar complexes. For your information, very important, that's mean coordination number 4 complexes, whether it is tetrahedral or square planar, do not show optical isomerism. 4 वाले बिल्कुल नहीं शो करते हैं optical isomerism, while the coordination number 6 complexes can show, coordination number 6 complexes show optical isomerism. जिनमें 6 लेजेंड्स लगे होंगे या जिनमें लोन कोऑर्डिनेशन नंबर जिनका 6 होगा will show optical isomerism. Clear, students? Now I want to tell the optical isomers. There are two important types of optical isomers. One is D-form, that's mean dextrorotatory. D-form, dextrorotatory, and other is L-form, levorotatory. L-form, levorotatory. That's mean which rotate the plane polarized light into clockwise direction, that will be called dextrorotatory, and which rotate the light in anti-clockwise direction, it will show levorotatory. But two more isomers, one is mesoform and one is DL-racemic mixture. These two are optically active isomers. Other two are optically inactive, and we will show that how they will rotate the plane polarized light. किस तरह से वो rotate कराएंगे हम आपको इस स्ट्रक्चर के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में जो कि शो करेंगे, जैसे हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आपको बताया था कि ये कंपाउंड शो करते हैं और ये नहीं शो करते हैं, उसी तरह से पहले हम डिस्कस करेंगे कि विच कंपाउंड विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6. मैंने यहाँ पे बता दिया आपको कि 4 वाले तो कोई भी नहीं शो करेंगे, यानी कि स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हो या टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो, उनमें कोई भी कंपाउंड शो नहीं करेगा. लेकिन जो आपका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होंगे
जिनमें 6 लीजेंड होंगे उसमें भी कौन शो करेंगे और कौन नहीं करेंगे वो आप देखिए। अगर आपका कोई मोनोडेंटेट लीजेंड लगे हुए हैं, सारे मोनोडेंटेट लीजेंड हैं A6 पावर प्लस माइनस n, MA6 पावर प्लस माइनस n, दिस विल नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आप नोट कर लीजिए क्योंकि क्वेश्चन आएगा फिर आप बता नहीं पाएंगे, तो प्लीज़ नोट डाउन इन योर notebook also. MA6 power plus minus n will not show optical isomerism. Similarly, MA3 B3 power plus minus n, this also not show optical isomerism. Okay students, so MA6 power plus minus n, MA3 B3 power plus minus n दोनों ही नहीं शो करेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेंगे। ज्योमेट्रिकल तो हो सकता है शो करें। तो हम क्या बताना चाह रहे हैं कि अगर सारे के सारे मोनोडेंटेट लीजेंड ही लगे हुए हैं, सिंगल डोनर वाले लगे हैं, वो कोई भी कॉम्प्लेक्स चाहे उसमें 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो, वो कोई भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेंगे। नाउ मूविंग टू अस विच विल शो द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। So dear students, see here MAA whole thrice power plus minus n, ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया है क्योंकि ये जो लीजेंड लगाया हमने दिस इज़ बाइडेंटेट लीजेंड, और बाइडेंटेट लीजेंड का मीनिंग एक लीजेंड 2 लोन पेयर्स डोनेट करेगा, दैट्स मीन 3 लगे हैं तो 6 लोन पेयर हो जाएगा और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। डेफिनेटली दिस विल शो द optical isomerism. Another example which will show optical isomerism is MAA whole twice A2 power plus minus n. This will also show optical isomerism. So, and one more, MAA whole twice AB power plus minus n. This will also show optical isomerism. That means these 3 are most important which you have to study and draw the structures of these in the form of D form, L form or mesoform. So now I'm going to draw the structure optical isomers of these complexes. Student, you have to learn this how I'm drawing, because if you will learn the method of drawing the optical isomers, it will be easy to you at the time of the examination. What is the concept to draw it? Okay, see first one, that's mean optical isomers of MAA whole twice A2 power plus minus n. पहले हम A3 का बना देते हैं जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। MAA whole thrice power plus minus n. See, this is octahedral complex, so we will draw, this is a square planar M, here this is 6 positions, 1 2 3 4 5 6. Now see how you will draw the first isomer which will rotate the plane polarized light into clockwise direction. Dear student, हम जब बनाएं तो हमें कैसे बनाना है कि वो clockwise. This is the first position. If you consider from here, you have to attach A and A. As you know, ये bidentate legend है तो ये बैक साइड से कनेक्ट होगा। हम इसको कनेक्ट करेंगे सीरीज गोइंग टू क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर आप इधर को जा रहे हैं तो ये क्लॉकवाइज है, अगर आप इधर ए लगाते लाइक दिस सो ये एंटी क्लॉकवाइज होता है। क्लॉकवाइज मीन्स जिस तरह से क्लॉक की निडल्स मूव करती हैं लाइक दिस 12 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 like this, that will be the clockwise. Then again second one is A and moving towards clockwise, this is clockwise, and A moving towards like this. This is your D form. That's mean अगर इसके सॉल्यूशन में पावर प्लस माइनस n इसको डिज़ोल्व करें वाटर में और इसमें लाइट प्लेन पोलराइज लाइट पास कराएं तो आप देखेंगे सॉल्यूशन से लाइट निकलने के बाद
कुछ रोटेट कर जाएगी उस और उसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी। और अगर हम एंटी क्लॉकवाइज दैट्स मीन एल फॉर्म बनाना चाहते हैं, सो हाउ यू विल ड्रॉ द एल फॉर्म ऑफ दिस? This is M, this is octahedral, A, 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 A. Where you are going at this side, that is anti-clock. आप देख रहे हैं एंटी क्लॉक जा रहे हैं आप. So A, A, like this. This is anti-clockwise direction and it is called L form. L form. So in this way it is easy to draw the D form and L form. एक बात आपको और बता दें, आज मैंने एक क्वेश्चन बच्चों से पुटअप की ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, जिसमें बच्चे हम यहाँ पे ए तो लिख रहे हैं, लेकिन जब हमको कोई बाइडेंटेड लीजेंड दिया जाएगा, सपोज़ कीजिए हम कोई ड्रा करेंगे, अभी आपको बताएंगे किस तरह से आपने रॉन्ग किया है क्वेश्चन को, तो क्या मिस्टेक आप कर रहे हैं। तो अगर इसका हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं, आई एम राइटिंग वन एग्जाम्पल, दिस इज CO ox whole thrice power -3. If you want to draw the optical isomers of this, definitely it is a bidentate legend and there are 3 legend and the coordination number of this complex is 6. If you want to draw the optical isomers of this, how you will draw? See, this is octahedral shape M. Here we have to write CO, cobalt. 3 ऑक्सीलेटो are attached. अब एक ऑक्सीलेटो 2 पोजीशन पे कनेक्ट होगा यहाँ से यहाँ तक। हम इसको यहाँ पे A और A लिखते हैं। हम डी फॉर्म बना रहे हैं, क्लॉकवाइज जाएंगे इसलिए हमने U बनाया, फिर हम यहाँ से यहाँ को जाएंगे, एक यहाँ पे अटैच होगा और एक यहाँ पे अटैच होगा। आप क्या कर रहे थे, अभी जब मैंने आज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनवाए तो आप लिख रहे थे ऑक्स 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 एंड ऑक्स. So dear student, see how many ox here? There are 6 ox here, and in the question it is given 3 ox here. So it will be absolutely wrong. So what we have to do? We have to attach this, not like this. आप इस तरह से 6 बना देंगे और आपका रॉन्ग हो जाएगा. ये क्या करना है, आपको यहाँ पे बीच में ऑक्स लिखना है एक बार और कनेक्ट करना है, एक बार ऑक्स लिखना है कनेक्ट करना है, एक बार ऑक्स लिखना है और कनेक्ट करना है. दिस इज डी फॉर्म -3 डी फॉर्म. अभी मैं और एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरह से बनाया गया है ये. सी अब एल फॉर्म बनाते हैं इसका. दिस इज CO, so anti-clockwise ox, then ox, then ox. This is L form -3 L form. अब शायद आप समझ चुके होंगे और मुझे लगता है कि अब नेक्स्ट टाइम आप ये मिस्टेक नहीं करेंगे कि जितने ऑक्स लगे हैं टोटल आपको उतने ही लगाने हैं. और आपको ये भी पता होना चाहिए कि बाइडेंटेट लीजेंट हैं और पीछे से आपको उनको कनेक्ट भी रखना है क्योंकि वो चिलेट बनाते हैं. अब हम इसको एक बार एक्सप्लेनेशन और करते हैं कि अगर हम इसको दूसरे फॉर्म से बनाएं तो कैसे बना सकते हैं. वो आपको लिखना उसमें ज़्यादा पड़ेगा लेकिन वो इजी है. ऑक्स का स्ट्रक्चर है COO, सिंगल बॉन्ड COO, निगेटिव निगेटिव, या आप एक ही पे दोनों निगेटिव लगा सकते हैं. मैं एक फॉर्म एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ, उससे आप दूसरा बना लीजिएगा. डी फॉर्म में एक्सप्लेन कर रहा हूँ. ये मैंने ऑक्टाहेड्रल शेप के लिए स्क्वायर प्लेनर बनाया CO और ये ऑक्टाहेड्रल बना दिया. अब हम डी फॉर्म बना रहे हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक हमको ऑक्स कनेक्ट करना है. ऑक्स में 2 कार्बन हैं, 2 कार्बन को हमने आपस में कनेक्ट कर दिया, ये दोनों को, और ये OO और देन OO.
like this. OOCOO, again OOCCOO, like this. Here also OOCOO. So this is your trioxylato cobalt third, cobaltate third, D form of trioxylato cobaltate third. अब आप देख रहे हैं कि किस तरह से ऑक्सीलेटो कनेक्ट किया है. अगर आप यहाँ पे ऑक्स और यहाँ पे ऑक्स लगा देंगे तो इसका मीनिंग है कि दो ऑक्स आपस में कनेक्ट यहीं पे हो गए, दो ऑक्स यहाँ पे, दो ऑक्स यहाँ पे, तो टोटल 6 ऑक्सीलेटो आयंस हो जाएंगे. तो आप प्लीज़ इस तरह से बनाना चाहें तो इस तरह से भी क्लियर कर सकते हैं. सो दिस इज़ द फर्स्ट स्ट्रक्चर विच आई हैव एक्सप्लेन, and D form similarly you can explain the L form also. Now moving towards the second one. सेकेंड स्ट्रक्चर को जाने से पहले हम आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं जो इसी तरह का है बिल्कुल, और आपको उसको दोनों फॉर्म में बनाना है जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए. CO इन होल थ्राइस पावर +3. इसके 2 आइसोमर्स बनेंगे ऑप्टिकल. इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल नहीं है, ये भी आपको बता दें. ये भी क्वेश्चन आता है कि इसमें से किसका ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल दोनों पॉसिबल है. इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं बन सकता है, इसके ऑप्टिकल आइसोमर्स आपको बनाने हैं. नाउ द सेकेंड इज MAA होल ट्वाइस A2 पावर +-n. सो अब आप कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं तो जल्दी आप बना लेंगे. दिस इज M octahedral complex and see here this is A and A, 2 position A and A clockwise direction में रोटेट करा रहे हैं हम like this, and A. This is D form power +-n, D form. Now L form, this is M, A and A, this is anti-clockwise direction, A and A, then A and A, this is L form, power +-n, L form. और इस तरह के जो कॉम्प्लेक्स हैं यानी इससे रिलेटेड जो एग्ज़ाम्पल है उसका स्ट्रक्चर आप बनाएंगे. एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ. CR ऑक्स होल ट्वाइस Cl2 पावर -3. और एक और एग्ज़ाम्पल आपको दे रहा हूँ. आपको CO इन होल ट्वाइस H2O होल ट्वाइस पावर +3. सो इन दोनों के, और ये अभी मैंने ऊपर एक दिया था, ऑप्टिकल आइसोमर्स आपको बनाने हैं. सो डियर स्टूडेंट, मुझे लगता है कि आप जो हैं समझ चुके हैं पूरी तरह से, और मैं आपको एक और लास्ट टाइप जो है वो एक्सप्लेन करूँगा. ओके, नाउ द लास्ट टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर विच वी वांट टू एक्सप्लेन, MAA होल ट्वाइस AB पावर +-n. एक बार मैं फिर से आपको बता दूं, ये AA जो है ये सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लीजेंट है. इसमें दोनों तरफ से एक ही एटम डोनेट करेंगे, और ये A और B जो स्मॉल लेटर्स में लिखे हैं ये मोनोडेंटेट लीजेंट हैं, अलग अलग हैं, इसलिए एक A है एक B है. कोई डिफ़िकल्ट नहीं है. अब आप पूरी तरह से सीख चुके हैं और मुझे पता है कि आप इसका अच्छा आंसर देंगे. M ये ऑक्टाहेड्रल बनाएंगे. देखिए कुछ बुक्स में थोड़ा सा इस फॉर्म में बना हुआ है, इस फॉर्म में, तो वो इसलिए 3 डायमेंशनल फिगर है ऑक्टाहेड्रल. इस तरह से भी आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, लेकिन इस तरह से थोड़ी स्पेस ज़्यादा लगेगी आपको बनाने में, इसलिए मैं इसको नहीं बना रहा हूँ. आप वैसे भी बना लें, वो रॉन्ग नहीं है. A
clockwise direction, A clockwise direction, and A B. This is power plus minus n, D form. अभी मैंने लास्ट वाले में एक स्ट्रक्चर आपको नहीं बताया था, वो इसमें बताएंगे आपको. नाउ L फॉर्म, M A एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जा रहे हैं. A ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन गए. A and B, this is also, and it is called L form. देखिए जिसमें इस तरह का कॉम्प्लेक्स है, या अभी जो मैंने इसके पहले बनाया था MAA होल ट्वाइस A2 पावर प्लस माइनस n, ये दोनों कॉम्प्लेक्स में D फॉर्म और L फॉर्म बनते हैं. साथ साथ एक फॉर्म और बनता है जिसे हम मेसो फॉर्म बोलते हैं. अब मेसो फॉर्म कैसे बनाते हैं ये भी सीख लीजिए. तो ये एक आपका नया फॉर्म बन रहा है. दिस इज M octahedral. Start from here. This is A, and this is clockwise. Now again A and A. This is anti-clockwise. एक साइड से clockwise दिख रहा है आपको, एक साइड से anti-clockwise दिख रहा है. And small A and B. This is your mesoform. Power plus minus n. Mesoform. और इसमें भी मेसोफॉर्म बनेगा. दैट्स मीन इसके और इसके 3 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं जो कि ऑप्टिकल आइसोमर्स बोले जाएंगे. 2 एक्टिव फॉर्म हैं जो रोटेट कराएंगे. ये रोटेट करा रहा है लेकिन इसका नेट रोटेशन 0 हो रहा है क्योंकि एक पोर्शन जो है क्लॉकवाइज में रोटेट करा रहा है और दूसरा पोर्शन एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में करा रहा है. अगर हम D और L फॉर्म के को इक्वली ऐड कर लें, मिक्स कर लें, तो भी रोटेशन कैंसिल हो जाएगा और उस मिक्सचर को रैसमिक मिक्सचर या DL रैसमिक मिक्सचर बोलेंगे. तो टोटल 4 टाइप्स के आइसोमर्स आपके बनेंगे. D फॉर्म, L फॉर्म, मेसोफॉर्म एंड DL रैसमिक मिक्सचर. जब आपके पास D फॉर्म है, L फॉर्म है और आप चाहते हैं कि लाइट रोटेट ना हो, तो आप उनको मिला करके रैसमिक मिक्सचर बना लेंगे और लाइट उससे रोटेट नहीं होगी. क्वेश्चन ये भी आता है, जैसे ऑप्शन में दे दिया कि इनमें से सबसे ज़्यादा किसके आइसोमर्स बनेंगे. कंपटीशन लेवल की बात कर रहा हूँ, और उन्होंने फिर 4 देख लिए, तो आप इससे मैच करा लेंगे. ये है तो इनके 3 आइसोमर्स पॉसिबल हैं. इसके आपने देखिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी बनाए थे. ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो करते हैं. तो इस पर्पज़ से ये भी कहता है कि ड्रा द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एज वेल एज ऑप्टिकल आइसोमर्स. यानी कि ये दोनों कंपाउंड हमारे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं. और इससे रिलेटेड मैंने इसके एग्जाम्पल तो आपको दे दिए, आपको होमवर्क में करना है उसे. अब मैं इसके भी एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ जो कि आप कर लें. तो इसके भी आपके 3 आइसोमर्स CR इन होल ट्वाइस CLBr पावर प्लस 1. एक तो आप ये कर लीजिएगा और एक कर लीजिएगा Fe ऑक्स होल ट्वाइस NO2 CN पावर -3. इन दोनों के आप कर लेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी. और इस तरह से हमारा जो ये आइसोमेरिज्म का पोर्शन था ये कंप्लीट होता है. कुछ थोड़ा पार्ट्स अभी भी इस चैप्टर में रहता है डियर स्टूडेंट, आप मिस मत करिएगा क्योंकि वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. और वो है वर्नर्स थ्योरी. वो नेक्स्ट लेक्चर में आपके पास जल्दी ही पहुंच जाएगा. मैं कोशिश करूंगा बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन करूं. ओके, गुड नाइट.